of 5.5 years, proudly I can say a group of companies. And Mr. Anurag mentioned today that I'm going to share some insights, plans for the next couple of years, and that is very true, but I will show you where we are today in the world, where we are heading to, and why you are in a safe zone where you are right now. So before starting the presentation itself, I want just to say congratulations to every Meetha member, to everybody in this call. You are in the right position where you should be. You did something in the past that lead you here, and that is a journey in your life that guides you through your life with the perfect direction in this world right now. So congratulations to everybody who is right now in the call, who is in our ecosystem and community, and I will explain you why this is the right choice. तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप सभी लोग इस कॉल के ऊपर जुड़े। और आज जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि हम अपना लॉन्ग टर्म विजन, अपना जो हमारा गोल है फ्यूचर का, उसको आपके साथ सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो आपको मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी समझने के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से, कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं एज अ कंपनी, एज अ इंडस्ट्री, और हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। Now let's crack on. Let's talk about what's happening right now, what happened the last couple of weeks. I highlighted here some of the news for you. You have seen or you have recognized some major liquidations around stock markets, around the crypto market. And a lot of people have been liquidated while trying to prolong the markets. They were thinking that, okay, now the tensions around the world are slowing down, that everything will pump up, but there was major liquidation. So if you go in the news, you will see that a lot of people got hurt in this industry. And as well, there are a lot of news about AI, about what's happening around AI. Every day, companies pushes new models, new features, and the latest news around AI is that the US government even shut down the Anthropic's latest model. There's a reason behind it, because it was too powerful. It was too powerful for a normal person out of the US to use it. Maybe there were security issues and stuff like that as well. The jobs are not 100% secure because people are panicking. But I have to tell you one thing and to calm you down, that don't go crazy around AI. It is something very good that is happening around the world, and the world is adopting. So be prepared for the next couple of slides. We're going to explain you why you are in the right spot where you are. So if you go to the previous slide, sir, that will be much easier. So देखिए, अगर देखेंगे जब हमारी लास्ट टाइम कॉल हुई थी, पिछली कॉल के बाद आज तक दुनिया में क्या हुआ, तो कुछ ऐसी बड़ी चीजें हुई जो हमारे सामने आई पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस थे हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें, अगर हम अपनी फॉरेक्स मार्केट को देखें, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेट हुए। अगर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं खुद डायरेक्टली, या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी माध्यम से, या अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान है कि पिछले कुछ 3 से 4 हफ्ते के अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल थी, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेट हुए। लोगों ने लॉस किया, बड़ी कंपनीज ने लॉस किया। और हमारे लिए ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और हम एक्साइटेड भी इसलिए हैं कि हम इस मुश्किल वक्त के अंदर, इस डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी अपनी सारी चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से होल्ड कर पाए, और अपना जो हमारा प्लेटफॉर्म है मीटर, उसको हम स्ट्रांगली आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई, वो ये है कि लोग बहुत डर गए कि एआई दुनिया में आ जाएगा, और एआई की वजह से शायद दुनिया बिल्कुल सारी जॉब्स खत्म हो जाए, सब कुछ रिपोर्ट्स रिकवर कर लें। तो अभी यूएस ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि एआई वो जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिसमें इंसान अच्छे हैं। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें अब ये बिल्कुल मैं कोट कर रहा हूँ यूएस गवर्नमेंट को, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम इस दुनिया के अंदर, जो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका चर्चा हमने 5 साल पहले शुरू कर दिया था कि आने वाले समय में डिजिटल दौर होगा, ब्लॉकचेन का दौर होगा, क्रिप्टो का दौर होगा, एआई का दौर होगा। आज फाइनली वो टाइम आ चुका कि जिस वक्त हम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं, उस डायरेक्शन की तरफ आगे खड़े हुए हैं। इसी तरीके से यूएस ने काफी जो कि सर्च इंजन है, जो कि एआई सर्च इंजन है, जैसा कि क्लॉड है, उन्हें कुछ मॉडल को ब्लॉक किया, क्योंकि कुछ चीजें बहुत जल्दी से तब्दीली दुनिया के अंदर लेके आ रही हैं, और किसी के फेयर में नहीं है, किसी के हक में नहीं है इतनी जल्दी से चीजें आई। तो देखिए, हमारे लिए ये एक्साइटिंग बात क्यों है, हमारी अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं जो इन सभी चीजों के ऊपर पिछले 5 साल से काम कर रही है। तो मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद दूंगा, आप सभी को जिन्होंने मीटर का विजन को बाई किया और मुश्किल वक्त में, आसान वक्त में कंपनी के ऊपर बिलीव रखा, और यही कारण है कि आज हम उस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं कि जो आने वाले समय में दुनिया में एक अपना नाम कायम करने जा रहे हैं। For example, one, I would say, chart for you to understand what the people are thinking out there, what's going on. Maybe you've heard about the .com bubble back then in 2008, where the internet boomed. Companies came out of nowhere. Billions of dollars were invested in the internet phase, in the .com bubble. And if you see today with all this AI and these billions and trillions being thrown around, the chart looks very scary, the same. So are we going really into a good economy, or are we going into a bad economy? I would say personally, it is not something good or bad happening, it is a transition. Things are about to transit. Just to add a small story, Mr. Fawad, you can translate for sure. A couple days ago, I was walking and going to the gym, and some children in front of me, around 10 years old, they were discussing a topic, I don't know, something about their electric scooter, and they said, I don't know, let's ask ChatGPT. Now you have to understand, this whole AI thing is not something scary. This is not something that will replace you. But if you want or not, you have to adapt to your environment. So this whole thing is not something that will go down or up. In the long term, it is something that is a transition right now, and you have to adapt to this transition. Now, I said earlier, you're in a lucky place, and after this, I will show you why you are where you are right now. तो अगर देखिए, जो हमारी पिछले 2008 का जो क्रैश आया था दुनिया में, जो लोग उस वक्त बिजनेस में इन्वॉल्व थे, या आईटी के सेक्टर में इन्वॉल्व थे, या किसी भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने .com बबल जो कि 2008 में, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्रैश था, उसमें जिन लोगों ने इन्वॉल्व थे, या अगर आपका एक्सपीरियंस था, तो आपने देखा कि .com के टाइम के ऊपर भी इस तरीके का पैनिक था। लोग इसी तरीके से परेशान थे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और जब .com ने लोगों के अंदर बदलाव लेके आया, जब इंटरनेट का प्रॉपर बूम आया, तो उस वक्त में भी जब लोगों ने, जब ये इंडस्ट्री क्रैश की .com की बबल बन रही था, लेकिन उस वक्त में भी कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई कंपनी, जैसा कि Amazon है, जैसा कि Facebook कंपनीज निकल के आई, जैसा कि Instagram है, TikTok है, Snapchat है, मैं नाम से नाम YouTube है,
मैं जितने नाम लेना चाहेंगे हम लेते जाएंगे। तो जब भी क्रैश आता है, ये क्रैश उन लोगों पर है जिनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया में क्या चल रहा है। सर ने कहा कि मैं आप सभी को दोबारा कैलकुलेट करूंगा कि हम उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो इन सभी चीजों को आने वाले समय से पहले ही कैलकुलेट करके चल रहा है। इसी के साथ सर ने एक स्टोरी शेयर की कि मैं 2 दिन पहले शायद जिम की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे कुछ बच्चे दिखे जो कि लगभग 9 से 10 साल की उनकी उम्र थी, और वो आपस में ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर शायद किसी का चल नहीं रहा था। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा कि अच्छा आप ये खराब हो गया तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसमें क्या मसला है, उसके अंदर हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो भी एआई के सर्च इंजन है, जो भी आने वाले समय में एआई है, ये हमारे फायदे के लिए है अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हम इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं एडम अपनी तरफ से कि एक मोबाइल फोन है, उसके 2 इस्तेमाल है। आप एक मोबाइल फोन के ऊपर सारा दिन बैठ के गाने और फिल्में देख सकते हैं, इसी तरीके से आप उसी फोन को इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है, ये चॉइस अब आपकी है कि आपने उस प्लेटफॉर्म को, उस डिवाइस को किस तरीके से यूज करना है। तो जिन लोगों ने भी, चाहे वो एआई का टूल हो, चाहे वो क्लाउड हो, जिन लोगों ने भी इसको एज अ इन्फॉर्मेटिव टूल यूज किया या अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए यूज किया, तो ऑफ कोर्स वो लोग पैसा कमाएंगे। और जो लोग इसको एज अ सिर्फ हाँ ठीक है जब होगा देखेंगे, तो हमेशा वो लोग कहीं ना कहीं जिंदगी की दौड़ में पीछे रहते हैं। और सर Now, let's talk about why you are in a safe zone, why you are in the right spot, as I said many times before. If you want or not, I say, in this whole transition, you have to have information, guidance, even you have to use everything that is coming right now into our lives. Either it is Web3, blockchain technology, it is AI, or even that you connect around the world digitally. A lot of things, even farming is happening digitally nowadays. A lot of major flagship projects around the world are happening in terms of farming to digitalize, to utilize everything you have there and make it more convenient. Now, the key facts and the whole potential, as I said, why you are in a good spot right now. The industry, the blockchain technology, it will be and is right now being implemented in governments, in private sectors, in companies, doing processes safer and faster. I would say net worth of these blockchain and fintech through the opportunity. So you have some key major industries that still have a lot of potential to the upside and are being developed for the last couple of years and now implemented in your everyday life. I will show you shortly the whole numbers and the potential itself. तो देखिए, जैसा कि दनिश ने हमें पहले ही बताया था कि हम एक सेफ जोन में हैं, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़े कि जो आने वाले समय में फ्लरिश करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊंचाई की तरफ जाएगा। तो मिस्टर दनिश ने इस स्लाइड में हमें एक्सप्लेन किया कि इसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या ऐसी रीजन है कि ये प्रोजेक्ट ही सही प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट ही आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। तो उसके कुछ कारण हैं जो कि 4 जैसे मिस्टर दनिश ने मेंशन किए स्लाइड के ऊपर। सबसे पहला तो जो दुनिया की इकोनॉमी है वो ब्लॉकचेन इकोनॉमी के ऊपर रन होगी, जो कि हमने देख लिया। दुबई ने ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया, उसके अलावा यूएस ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जिसको समय लगेगा इंप्लीमेंट होते हुए, स्टार्ट होते हुए शायद 1 साल का समय लगे, 2 साल का समय लगे, लेकिन ऑलरेडी सारी कंपनीज ने ब्लॉकचेन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन ड्रिवन इकोनॉमी के ऊपर ही फोकस किया। तो हमारी कंपनी, आपकी कंपनी ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है। इसी तरीके से जो डिजिटल बैंकिंग है, अगर हम बात करें तो डिजिटल बैंकिंग क्या है, क्रिप्टो बैंकिंग कह लीजिए, डिजिटल बैंकिंग कह लीजिए, आपकी कंपनी एमकॉइन के माध्यम से, एमकॉइन को लेके, राइजर के माध्यम से, और इस तरीके से हमारा एम कार्ड को लेके, एम कार्ड के माध्यम से लेके, ये ऑलरेडी हम उस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कि तीसरी बड़ी चीज है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब देखिए, शायद कुछ साल पहले हमारे पास ऐसे लोग थे, जब हम उनसे बात करते थे ट्रेडिंग की, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, तो ज्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी। इसको हम बोलते हैं, ज्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इसको हम बोलेंगे रिटेल ट्रेडर्स। आज आप किसी के पास जाके बैठिए, सभी को फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता है, सभी को क्रिप्टो ट्रेडिंग का पता है, चाहे वो दुकान वाला है, चाहे वो बिजनेस ऑनर है, चाहे वो कोई रियल एस्टेट से बिलोंग करता है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज देखने को डेली दिन ब दिन नजर आ रहा है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इसी के साथ अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी हमारे मेटावर्स के अंदर भी है। अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो आपके जो जितने इकोसिस्टम में प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेटावर्स है, चाहे वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एडअप है, तो सारी ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी कंपनी पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी फोकस के साथ काम कर रही है। और इसी यही कारण है कि आप सेफ हैंड्स में हैं, आप सेफ प्लेटफॉर्म के साथ हैं, आप एक उस प्लेटफॉर्म के साथ हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करने जा रहा है। Now let's talk about numbers, and before I continue with all the numbers, don't get confused, but the total blockchain economy right now is worth around $2.2 trillion. If you take the number after this call out and compare it to other industries, I would even say compare it to other companies, and the biggest hit right now is Elon Musk, SpaceX. He had the IPO, the launch. The company, if I'm not wrong, it surpasses even this kind of market cap. So the crypto market cap is around 2.2 trillion, and the NFT market itself right now is at 1.4 billion. So numbers which are in established sectors, really low in terms of volumes, market cap and volume. But what this means for us and what is the upside, I will come to the conclusion later. I want you to give you one task after this call. Just compare and search for different companies like Nvidia, Amazon, Google, their market cap, their kind of volumes compared to the blockchain economy, which is already established around the world, but we are about to shoot off. It is still in the early phases. Right now, there's still a lot of things going on behind the scenes. So the blockchain economy itself is in early stages while being developed and established right now. तो अगर हम पहले बात करें तो ब्लॉकचेन जो कि ब्लॉकचेन इकोनॉमी है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन इकोनॉमी है कितनी बड़ी और इसका क्या टोटल स्केल है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो $2.2 ट्रिलियन, $2.2 ट्रिलियन की मार्केट है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि जो गोल्ड का, जो सोने का पूरा मार्केट वैल्यू है, ये मात्र उसकी 20% वैल्यू भी नहीं बनती है। गोल्ड देखें तो गोल्ड लगभग आज 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर है टोटल उसका जो वॉल्यूम है। चाहे जहाँ भी दुनिया में गोल्ड है, उसका टोटल हम मार्केट कैप देखें, जो एक कैलकुलेटेड मार्केट कैप है वो है 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर। अब उस गोल्ड को कंपेयर कीजिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर तो मात्र $2.2 ट्रिलियन, जो कि लगभग 20% से भी कम ही रहेगा। तो ये समझना जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है कि जिसके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर ग्रोथ अब शुरू होगी, जिसके अंदर लोग अब जुड़ेंगे। आने वाले समय में जब दुनिया ब्लॉकचेन इकोनॉमी में शिफ्ट करेगी तो सारी दुनिया, जो लोग आज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से नेगेटिव है, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में उनके साथ स्कैम किया गया, कहीं ना कहीं उनके साथ उनका बेनिफिट उठाया गया, तो उनके लिए ये बेहतर मौका है। ये वो जब वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो मित्र को ज्वाइन करें या ना करें, चाहे वो एमकॉइन को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन जब वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो ये $2.2 ट्रिलियन का मार्क है, ये ऊपर जाएगा 5 ट्रिलियन की तरफ, 10 ट्रिलियन की तरफ। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट कर चुकी है। इसी के साथ अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस है मात्र 57%, 57% जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है। बाकी जो कॉइन्स है उसमें इथेरियम
है, रिपल है, सोलाना है, बाकी जो कॉइन, एम कॉइन है, राइजर है, बाकी इस तरीके से जो कॉइन्स रहेंगे यहाँ स्टेबल कॉइन्स हैं, उन सभी को मिला के $312 बिलियन की जो है ओवरऑल इसके अंदर वॉल्यूम है। तो इसका मकसद ये है कि ये वो इंडस्ट्री है। देखिए जब हमने क्रिप्टो को ज्वाइन किया आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, तो हमें लगा कि शायद हम लेट आए, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू थी $250। तो हमें उस वक्त लगा कि हम शायद लेट इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त बहुत अर्ली थे। और अगर आज देखें तो शायद आपको लग रहा होगा कि अब हम क्या करें, अब हम थोड़ा लेट हो गए, इंडस्ट्री में बहुत लोग आ चुके। तो ये अगर कंपेयर करें हम अपने